بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. ان باتوں سے دل برا کرنے سے بہتر ہے جو بھی معاملات ہیں پہلے ہی طے ہو جائیں ہمارے درمیان. وہی جو روایت ہے سب دیتے ہیں، کپڑے، برتن، جہیز، یہی سب. یہ کیا بات کہہ رہی ہیں بہن آپ؟ آج کل کون 4 برتنوں میں اور 2 جوڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں تھی. اب تو لوگ جہیز میں بائک، گاڑی، لاکھوں کا کیش اور نہ جانے کیا کچھ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو. اگر آپ لوگ جہیز میں گھر اور گاڑی کا انتظام کر لیں تو ابھی تاریخ طے کر لیتے ہیں. اتنا سب کچھ تو ہم نہیں کر سکیں گے. بڑی مشکل سے میرے شوہر مرحوم نے ہمارے لیے یہ چھت چھوڑی ہے. یتیم بچی ہے میری، معاذ اکیلا کمانے والا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کچھ تو خیال کریں. کیوں پریشان ہو رہی؟ سنا نہیں تم نے کس طرح سے منہ بھر کے جہیز کی ڈیمانڈ کر کے؟ آج کل تو لڑکی سے زیادہ جہیز دیکھا جاتا ہے. کہاں سے بنائیں گے ہم نرمین کے لیے اتنا مہنگا جہیز؟ کیسے ہوگا میری بیٹی کا رشتہ؟ چند لالچی اور برے لوگوں کی وجہ سے کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہیں؟ دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہیں نا. کہاں ہیں اچھے لوگ؟ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتے، اور جو ہے وہ تم نے دیکھ لی ہے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، ٹائم پہ آ گیا تھا. 1-2 ارجنٹ میٹرز ریزالو کرنے تھے، سوچا وہ نپٹا لوں پھر آپ سے ملتا ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ رات کو جس حالت میں آیا تھا اس کے بعد صبح کیسے اٹھ پائے گا؟ بٹ ڈونٹ وری، نمیرہ ہے گھر پہ، دیکھ رہی ہے اسے. ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانی لائبریری تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک ایسی کتاب چھپی ہے جو مستقبل کے سوالوں کے جواب دیتی ہے. لوگ اسے صرف کہانی سمجھتے تھے، مگر ایک دن ایک غریب طالب علم رحم نے اس راز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک خفیہ کمرہ ملا. وہاں ایک سنہری کتاب رکھی تھی. ارحم نے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، جو سوال پوچھو گے جواب ملے گا، لیکن صرف ایک بار. ارحم نے سوچا کہ دولت، شہرت یا کامیابی کے بارے میں پوچھے، مگر آخر میں اس نے سوال کیا، میں اپنی زندگی کو سب سے بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ کتاب کے صفحے پر صرف ایک جملہ ظاہر ہوا، ہر دن کچھ نیا سیکھو اور کسی ایک شخص کی مدد کرو. ارحم کو جواب بہت سادہ لگا، مگر اس نے اس پر عمل شروع کر دیا. سال گزرتے گئے، وہ علم حاصل کرتا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا. آہستہ آہستہ وہ قصبے کا سب سے قابل اور محترم شخص بن گیا. جب وہ بوڑھا ہوا تو دوبارہ لائبریری گیا. خفیہ کمرہ اب خالی تھا، لیکن دیوار پر ایک تحریر چمک رہی تھی. اصل جادوئی کتاب کبھی جواب نہیں دیتی، وہ صرف انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانی لائبریری تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک ایسی کتاب چھپی ہے جو مستقبل کے سوالوں کے جواب دیتی ہے. لوگ اسے صرف کہانی سمجھتے تھے، مگر ایک دن ایک غریب طالب علم رحم نے اس راز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک خفیہ کمرہ ملا. وہاں ایک سنہری کتاب رکھی تھی. ارحم نے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، جو سوال پوچھو گے جواب ملے گا، لیکن صرف ایک بار. ارحم نے سوچا کہ دولت، شہرت یا کامیابی کے بارے میں پوچھے، مگر آخر میں اس نے سوال کیا، میں اپنی زندگی کو سب سے بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ کتاب کے صفحے پر صرف ایک جملہ ظاہر ہوا، ہر دن کچھ نیا سیکھو اور کسی ایک شخص کی مدد کرو. ارحم کو جواب بہت سادہ لگا، مگر اس نے اس پر عمل شروع کر دیا. سال گزرتے گئے، وہ علم حاصل کرتا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا. آہستہ آہستہ وہ قصبے کا سب سے قابل اور محترم شخص بن گیا. جب وہ بوڑھا ہوا تو دوبارہ لائبریری گیا. خفیہ کمرہ اب خالی تھا، لیکن دیوار پر ایک تحریر چمک رہی تھی. اصل جادوئی کتاب کبھی جواب نہیں دیتی، وہ صرف انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانی لائبریری تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک ایسی کتاب چھپی ہے جو مستقبل کے سوالوں کے جواب دیتی ہے. لوگ اسے صرف کہانی سمجھتے تھے، مگر ایک دن ایک غریب طالب علم رحم نے اس راز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک خفیہ کمرہ ملا. وہاں ایک سنہری کتاب رکھی تھی. ارحم نے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، جو سوال پوچھو گے جواب ملے گا، لیکن صرف ایک بار. ارحم نے سوچا کہ دولت، شہرت یا کامیابی کے بارے میں پوچھے، مگر آخر میں اس نے سوال کیا، میں اپنی زندگی کو سب سے بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ کتاب کے صفحے پر صرف ایک جملہ ظاہر ہوا، ہر دن کچھ نیا سیکھو اور کسی ایک شخص کی مدد کرو. ارحم کو جواب بہت سادہ لگا، مگر اس نے اس پر عمل شروع کر دیا. سال گزرتے گئے، وہ علم حاصل کرتا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا. آہستہ آہستہ وہ قصبے کا سب سے قابل اور محترم شخص بن گیا.
जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है।
एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला।
वहीं एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहीं एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हुआ, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ।
किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है।
एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म रहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला।
वहीं एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक खुफिया कमरा मिला। वहाँ एक सुनहरी किताब रखी थी। अरहम ने किताब खोली तो इसमें लिखा था, जो सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरहम ने सोचा कि दौलत, शोहरत या कामयाबी के बारे में पूछे, मगर आखिर में उसने सवाल किया, मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। किताब के सफ़े पर सिर्फ एक जुमला ज़ाहिर हवा, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी एक शख्स की मदद करो। अरहम को जवाब बहुत सादा लगा, मगर उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कस्बे का सबसे काबिल और मुहतरम शख्स बन गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो दोबारा लाइब्रेरी गया। खुफिया कमरा अब खाली था, लेकिन दीवार पर एक तहरीर चमक रही थी। असल जादुई किताब कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इंसान को सही रास्ता दिखाती है। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक ऐसी किताब छपी है जो मुस्तकबिल के सवालों के जवाब देती है। लोग इसे सिर्फ कहानी समझते थे, मगर एक दिन एक गरीब तालिब इल्म अरहम ने इस राज को ढूंढने